Actually, I'm very humbled that this is, like my launch movie because, I went for the screen test and someone had shown Sir my photograph. And he said, it was a very funny photograph. I mean, I have a cigarette in my mouth and I'm posing like this. And he saw it, he's like, call this boy. I gave the screen test and then he liked it a lot. I think I was lucky, he liked my acting. And then he gave me a narration of like a part of the script. और मुझे इतना मज़ा आया सुन के कि I'm like, I have to do this. It's a very author-backed role, very grey character. I can't tell you too much about it, but मैं घर गया, I told my dad कि ऐसा ऐसा role है. He's like, just jump and do it. So I think I'm very fortunate this whole thing happened, and I would really like to thank sir for this opportunity and the writer sir for writing this role, because जब आप देखेंगे, and I have to of course work hard as an actor to prove myself, I'm sure you all will love this role. Thank you. थैंक यू. एंड तैयारी क्या क्या कराई आपसे राठी जी ने? आपने खुद क्या क्या तैयारी की? क्राइम थ्रिलर है तो एक्शन भी बहुत होगा. Yes, actually तो डंबल्स एंड पुशअप्स एंड एवरीथिंग. जिम तो मैं ऐसे ही करता ही आ रहा हूँ. And in fact my hair worked for this particular role because he was looking for that kind of a look. So I was lucky. I've kept my hair long because I perform on stage. मतलब पहले से कुछ टेलीपैथी चल रहा था आप लोगों का? कुछ connection था. And I've kept my hair long because I perform on stage as Duryodhan. So it just saves time from wearing a wig. But the hair worked, the look worked. Most importantly, sir के साथ मैंने बहुत readings किए हैं. Because ये एक बहुत Mercurian character है. It's not only like filled with one emotion. इसमें बहुत emotions है. He's the hero of the film, but he's also got a lot of dark shades to him. I've read with my co-actors once, but I've spent a lot of time reading with sir, and yeah, अभी तैयारी चल रही है अभी भी. And we also have our other members of the star cast here with us. I'd like to invite them on stage. I would also like to acknowledge our co-producers, Xavier Anthony and Mr. Anu Jain. Thank you so much for your support. And I'd like to now invite on stage from our star cast, we have with us Amit Pachori, Suparna Malkar, and Preeti Chaudhary. Please be here with us on stage. आप सब यहाँ आ जाइए, सब एक साथ पूरा cast. And we want all of you to say something about the role or about the project. जैसा कि आपने एक बात बोली, कनेक्शन, ये कनेक्शन का ही खेल है पूरा का पूरा. और ये जैसे ही मैं राजेश सर से मिला तो वो कनेक्शन फील हुआ मुझे, और इनको भी लगा कि हाँ यही है मेरा इसमें नाम डीके है इसमें, और ही इज जैसे पीके थे आप डीके हैं, ड्रग माफिया, ड्रग लॉर्ड ही इज. तो वो उस तरह का रोल है जो कि मैंने आज तक कभी प्ले नहीं किया. मैंने हमेशा पॉजिटिव और इस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, तो फर्स्ट टाइम आई विल बी डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर. एंड सो गुड रेंज फॉर यू एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर. आई ऑलवेज लुक फॉर इट कि मतलब कोई अच्छी सी रेंज मिले मुझे, अच्छा कुछ परफॉर्मेंस वाला मिले. डेफिनेटली. और सर मुझे बोर्ड पे ले आए. एक्चुअली मुझे बोर्ड पे लाने वाला मेरा दोस्त है अर्जुन. ही इज़ वन ऑफ द प्रोड्यूसर. तो ही कॉल्ड मी, ही सेड कि करेगा क्या भाई, एक काम है. तो मैंने बोला क्यों नहीं करूँगा, मिलते हैं. तो फिर सर से मिला तो फिर सब क्लियर ही हो गया. पिक्चर इन्होंने पूरा क्लियर कर दिया. कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि बहुत ही फाड़ू टाइप का कैरेक्टर है. I know. वो आप लोग देखिएगा तब मज़ा आएगा आप लोगों को. That's right. And now we'd like to hear from our female cast. Yeah, please. Our heroines. सुपूर्णा. क्या बताऊँ मैं, मैंने really want to thank someone in our team जिनके वजह से मैं राठी सर से मिली हूँ, and of course my producers considering me to play this character. हाँ, और मैंने सर को पूछा था कि what made you feel कि I can play this character. तो this is also मतलब सर I'm right, मैंने पूछा था तो सर said your soft look. तो the girl, she is little softer side of the female character, but ठीक है, मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकती as they said. तो सब लोग देखिएगा फिल्म, और मेरे लिए ऑफिशियली पहली हिंदी मूवी है, so I'm really excited and little. मतलब ये अभी नेचुरल है, ये वो कैरेक्टर वाला वो सॉफ्टनेस हमें देखने को मिल रहा है. Oh God, sir, I'm little nervous of course. ये जैसी नेचुरल है
वैसा ही कैरेक्टर है एक्चुअली. Thank you. And we'd like to hear you as well about your look. मुझे लग रहा है कि जैसे एंजेलिना जोली का look था, you know, in the thrillers that she has done. So we'd love to know from you about the project. Yeah, she is Preeti Chaudhary. हाय गुड इवनिंग एवरीवन. कैरेक्टर के बारे में बताना चाहूँगी. इट्स रियली चैलेंजिंग फॉर मी. काफ़ी बोल्ड है और जिसमें कि मैं हूँ नहीं, दिखती हूँ वैसी, पर कैरेक्टर है वैसा. सो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग है. और थैंक्स बोलना चाहूँगी राजेश जी को, अपने प्रोड्यूसर सर अर्जुन जी को. राजेश जी ने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया एंड ये मेरी फर्स्ट फिल्म है. And I'm so glad I'm working with you, sir. Thank you. So thanks, everyone. मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा अबाउट अमित, दैट मेरे फादर हमेशा मुझसे कहते थे कि उनका एक फेसबुक पे फ्रेंड है, इज़ अ वेरी नाइस बॉय, वेरी टैलेंटेड बॉय, एंड इन द पास्ट 2-3 times वी वर सपोज टू बी वर्किंग ऑन समथिंग टुगेदर, बट इट डिडंट हैपन. लाइक डैड हैड इन माइंड, ही हैड टोल्ड मी कि ये करेंगे, बट आई थिंक दिस इज ऑल्सो डेस्टिनी दैट फाइनली हम साथ में काम कर रहे हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ दिस होल टीम. थैंक यू. We have got 3 songs in the film. Actually, हिंदी फिल्म बगैर गाने के हम सोच भी नहीं सकते हैं. So we have got 3 songs in the film, and they are situational songs because it's a thriller. So I would not like to stop my story. So the songs goes with the story without interrupting the flow of the film. And he has composed a very good song for me. Thank you, Mr. God. थैंक यू. तो आपकी शोभा यहाँ मंच पर आना बनता है. कुछ कहना चाहते हैं लेकिन माइक के बिना नहीं. आप प्लीज जो भी कह रहे हैं माइक पर ही कहिए. अभी क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं सोच रहा था सबसे अच्छा पड़ोस किस साइड का है. माशाल्लाह ये पड़ोस अच्छा है और मैं मुबारकबाद देने आया हूँ पूरी टीम को. जी, एक फिल्म बनती है 90 परिवार चलते हैं, तो हमारी शुभकामनाएं हैं. इतनी मेहनत से फिल्म बनती है और आप तो हमेशा माशाल्लाह हिंदी भी अच्छा बोलती हैं, उर्दू भी अच्छा बोलती हैं, इंग्लिश भी, दिल की बातें अच्छा करती हैं आप, और मेरे बालों पे बहुत कमेंट्स करती हैं. तो ये ओरिजिनल है, विग नहीं है. ये अलग बात है कि मैंने बिग बॉस में काम किया. सुनील पाल का विग है, मेरा विग नहीं है, मेरा ओरिजिनल ही. स्वाति जी को 2 लाइन अपने अंदाज में सुना देता हूँ सर, ताकि आप सबको लगे मैं ओरिजिनली हूँ, क्योंकि आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते हैं. स्वाति जी आपके चेहरे पे हंसी, आंखों में नमी है, आप टाटा का नमक खाएं, आप में आयोडीन की कमी है. थैंक यू वेरी. और सैम जी के साथ जब भी हम मंच पर होते हैं तो हमारी ये दोस्ती चलती रहती है, दोस्ती की बातें. फिलहाल वी हैव पेंथल सर हियर विद अस. सर, वीड लाइक टू हियर फ्रॉम यू योर बेस्ट विशेस फॉर द कास्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट. आपने इतने साल बिताए हैं, तो हर बार जब भी आप एक न्यू टैलेंट को लॉन्च होते हुए देखते होंगे तो आपके मन में क्या चलता है? No, it's hello everyone. बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है हमारा और आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस डे कि ये लॉन्च होगा इन अ बिग वे. और हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है. और इसका बाप तो मेरा भांजा था, एक दुर्योधन, और ये अब लॉन्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मेरे भांजे का बेटा अगर लॉन्च हो रहा है तो मामा तो बहुत, ग्रैंड मामा बहुत खुश होगा. एंड वी आर डूइंग अ प्ले टुगेदर. हम लोग एक प्ले कर रहे हैं जो इनके पिताश्री ने डायरेक्ट किया है, कॉल्ड महाभारत. महाभारत द एपिक टेल. हम लोग अबाउट काफ़ी शोज, 22 शोज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, दिल्ली एंड जयपुर. और अभी हम बॉम्बे में आ रहे हैं सितंबर में 14-15 को. उसमें मेरे छोटे बच्चे ने इससे बहुत ही अच्छा रोल किया है, छोटे दुर्योधन का. उसके बाद पुनीत जी टेक्स ओवर. और जब रिहर्सल ही हो रही थी अबाउट अ ईयर बैक,
तो मैंने पुनीत को बोला, पुनीत, योर सन इज आउटस्टैंडिंग and he deserves all the kudos and all the luck, and he deserves everything possible from this industry. And I think rightly इनके प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं. और लास्ट डील इज द नेम ऑफ द फिल्म. आप लोग याद रखिए इसको, आप भरपूर आशीर्वाद दीजिए. एंड आई रियली I would appeal to all my bhanja and bhanjis to give him Ashirwad. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर. एंड पवन जी, एक बेस्ट विश आपकी तरफ से भी बनता है, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली. मेरा नाम पवन कौशिक है और मैं स्पेशली दिल्ली से आया हूँ. मैंने दिल्ली में महाभारत का मंचन देखा था और जब मैंने दुर्योधन का प्रारंभ में अभिनय देखा तो मैं स्तब्ध था कि इतना अच्छा अभिनय कोई नया कलाकार मैं सोच भी नहीं सकता था जितना सिद्धांत ने अच्छा अभिनय वहाँ पे किया था. बाद में पुनीत जी ने किया था. पुनीत जी को सब जानते हैं. गोपी पेंटल जी से अपेक्षित था कि इतना अच्छा अभिनय करेंगे ही करेंगे, लेकिन वास्तव में मेरे पास शब्द नहीं है इनकी प्रशंसा करने के लिए. सिद्धांत ने इतना अच्छा अभिनय किया था और मेरी शुभकामनाएं सदैव साथ हैं. वास्तव में प्रतिभा संपन्न बच्चा है और उन्नति के सारे योग मुझे दिखाई देते हैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ. थैंक यू वेरी मच. सर, आपकी भाषा से ही हम समझ गए थे. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत लोग आपको अच्छे से जानते हैं. सिद्धांत कुछ कहना चाहते हैं? What Goofy uncle said, actually मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ वर्क करके. एंड अभी जैसे ये भी है जो whatever I have learned working with my seniors, with my father, Goofy sir, Surinder Pal sir, I think I'm going to put it in when I perform here. So yes. ये राठी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि फोटोग्राफ देखी आपने सिद्धांत की, उन्होंने हमें बताया, और किस तरह से आपने ऑडिशन किया, उन्हें कैसे परखा, उनको कोई डायलॉग दिया आपने फिल्म में से या उनका प्ले ही आपने देखा? नहीं, प्ले तो मैंने नहीं देखा. लेकिन क्या होता है कि किसी भी फिल्म के अंदर जब हम प्लान करते हैं और कैरेक्टर्स को एक दिमाग में एक इमेज बनती है तो हमारी तलाश शुरू होती है कि उस इमेज से मिलता जुलता चेहरा सबसे पहले कौन है. क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपको राइट फेस मिल जाता है जो आपने अपनी कल्पना में, आपकी कहानी में जो गढ़ा है, तो हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन. And I have been meeting a lot of actors, some of the well-known actors in the industry for this role, but somehow कहीं ना कहीं एक intuition होता है, it was not clicking. बल्कि कुछ, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ आर्टिस्ट इस रोल को इतना मतलब शिद्दत से करना चाहते थे. They have been calling me known actors, but still I was not sure कि ये रोल उन पे फवेगा कि नहीं फवेगा. But when I saw his pictures, then I called him and I met him. मुझे एकदम से एक इंट्यूशन लगा कि यार ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस रोल. एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग a script with him and we had some sessions, so the way he has been involved in the film and in the script and in the role, because it's a very difficult role, I will tell you. It's not a straight role. It has got so many layers, so many ups and downs, and I mean very difficult for a starter on a screen to say. But he took the challenge and he's very enthusiastic about it and he's working very hard, and I'm sure you will all see this result. And Siddhant, thank you so much sir for sharing that with us. Siddhant, आप थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम सीरियस एक्टिंग बैकग्राउंड, और अब यहाँ पर तो फिर डांस एंड वो सब भी होगा, सिंगिंग, लिप सिंगिंग, उसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस? एक्चुअली उस दिन सर ने मुझे सडनली ड्यूरिंग वन वर्कशॉप बोला कि तुम्हारा एक डांस भी होगा. सो आई जस्ट गॉट लाइक यू नो, बट या दैट विल आल्सो बी अ चैलेंज बिकॉज सी आई नो हाउ टू डांस, बट ओवरऑल ये जो रोल है इट्स अ वेरी डार्क एंड अ सर्टेन शेडेड रोल. I think that's what sir told me, that there might be a sequence. Yes. So I'll have to specially, of course, So prepare. you're looking for forward to that as well? Of course, I'm looking forward to it. Yes. And क्योंकि आप already you're a theatre actor, तो obviously you're always ready to perform. तो क्या आप अपना कोई favorite dialogue हमारे साथ share करना चाहेंगे? It can be from any. See, it's script from you like. my play. You know, Yes. it's in a poetic form. राठी सर, आपकी इजाजत हो तो? Sure, why not? So in the end, like when Duryodhan come, he's like, मेरे युग को मेरे नाम से आगे जाना जाएगा. ये पांडव हुए थे दुर्योधन के युग में, इतिहास ये बतलाएगा. Means when in the end, and then he comes as the older Duryodhan.
So this is the last line of my, of course, the poetic thing, so I can't say the whole thing here, but that is one thing that in the end he believed that, and अगर आप देखें तो हम महाभारत को दुर्योधन की वजह से याद रखते हैं. For sure. I think, Yes. Rathi ji, Hey, let what me would tell you like to add to that? Hey, let me tell you one thing. याद आ रहा है जब हम लोग साथ में बैठे थे, बातचीत में he used a word विकार. वाह, मैंने कहा विकार, एक तो बहुत दिनों बाद किसी के मुंह से First मैंने शब्द सुना था. बिल्कुल. बिकॉज आजकल के जो एक्टर्स हैं, इवन जो एडीज भी आते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी लैंग्वेज बहुत वीक होती है, हिंदी भी वीक होती है, बल्कि कितने लोग तो हिंदी पढ़ ही नहीं पाते हैं, उनको रोमन में लिख के देना पड़ता है. मैंने अपने सारे एक्टर्स से पूछा कि आप लोग हिंदी पढ़ सकते हैं, वाह, तो सुपूर्णा ने भी कहा, प्रीति ने भी कहा, एंड इसने भी बताया मुझे कि नहीं सर हम हिंदी पढ़ सकते हैं. आई वॉज वेरी हैप्पी कि आप हिंदी फिल्म में काम कर रहे हैं, हिंदी डायलॉग्स पढ़ सकते हैं, हिंदी स्क्रिप्ट में लिखे हुए. तो विकार शब्द इसके मुंह से जब मुझे सुनाई आया तो मैंने कहा इतनी अच्छी हिंदी कैसे है तुम्हारी. तो ही सेड बिकॉज ऑफ द प्ले ही हैज बीन डूइंग एंड ही हैज आल्सो लर्नड उर्दू. Yes. Because I was training with Nadira Zahir Babbar ma'am earlier Wow. in Ekjut, तो वो भी एक background है तो इसके लिए. Very nice to know about the language and he's keen about it. वाह, वंडरफुल. तो सर्वगुण संपन्न हीरो आपको मिले हैं जिनमें कोई भी विकार नहीं है. एंड She knows what विकार means. हाँ, थैंकफुली आई नो. हम तो सर ये बताएं कि शूटिंग की तैयारी कब है, कहाँ शूटिंग के लिए ले जा रहे हैं आप कास्ट को, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से शेड्यूल बना है और कब हम रिलीज को एक्सपेक्ट कर सकते We हैं? are planning the release in January 2020 and we are starting the shoot from 19th of this month. And most of the part will be shot in Bombay because it is a Bombay-based story. And a part of the film will be shot in Goa also. That will be the last schedule. ये सारा क्रेडिट राठी सर को ही जाता है, वही बताएंगे. ये वैसे आपने सही कहा कि किसी भी फिल्म का टाइटल डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है और हम लोग भी इस मुश्किल से बहुत गुजरे हैं. तो पहले कुछ और टाइटल्स थे, फिर लास्ट में ऐसा कुछ. और हमारे यहाँ मज़ेदार बात ये होती है कि हम जो भी अच्छा टाइटल दिमाग में आता है और एसोसिएशन में जाते हैं तो पता चला वो उसके पास है, वो उसके पास है, वो उसके पास है. भले वो 6 साल से टाइटल वो रिन्यू करवा रहे हैं, फिल्म नहीं बन रही है, बट वो किसी न किसी के पास है. उस चक्कर में आपको हर बार सोचना पड़ता है, फिर कुछ और सोचो, कुछ और सोचो. तो दिस वाज द लास्ट. तो लगभग कितने टाइटल्स की स्क्रीनिंग के बाद ये टाइटल फाइनल हुआ होगा आपको लगता है? कम से कम 5-6 टाइटल्स. माय गॉड. और जो That's so right. at last we found this title, Last Deal. And that's a very interesting title, I must say. And अर्जुन जी आपकी बहुत तारीफ हो रही है, आप बस खड़े खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मन ही मन में. तो प्लीज़ ये मन मन में जो मुस्कुराहट है प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए. आपकी तो आई थिंक मैक्सिमम फ्रेंड्स को आपने ऑन बोर्ड लेकर आए हैं, तो आपके लिए ये स्टोरी की जर्नी कैसी थी? अगर बात करूँ स्टोरी की तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है. एक दिन मैं और राठी जी एक कॉफ़ी डे में बैठे हुए थे एंड वहाँ पे डिस्कशन चल रही थी कि यार एक फ़िल्म तो अब बनानी है. तो ठीक है यार, फिल्म तो बनानी है, ऑलरेडी इतने साल हमने इंडस्ट्री में निकाला है, तो स्टोरी क्या पिक की जाए. तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई. वो स्टोरी सुनने के बाद यस ये बहुत अच्छी स्टोरी है, हम ये करेंगे. अब इस स्टोरी के लिए सबसे बड़ी फाइट हमारी स्टार्ट हुई कास्ट. पता नहीं आई थिंक 3 और 4 मंथ हमने इस पर सिर्फ कास्टिंग की है. एवरी वीक राठी जी एक शॉर्ट लिस्ट करते थे लड़कियों के लिए, ये लड़की, कभी मैं करता था कि ये लड़की होंगे, ये लड़के होंगे. फिर हम जब उनको कॉल करना था, हमें बुलाना था लुक टेस्ट के लिए, फिर हम बैठते थे, नहीं सर जो हमने स्टोरी सुनी है ना उसके लिए ये लड़की फिट नहीं है, ये लड़का फिट नहीं है, कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग चाहिए. अचानक ऐसे करते 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 एक दिन राठी सर का एक मैसेज आता है, अर्जुन मैं एक इवेंट एक पार्टी में था एंड ये वो गर्ल है, हाउ इज सी. मैं कहा सर अभी के अभी बुलाओ. बिल्कुल एकदम फिल्मी हो गया है. तो मतलब हर जगह हंट चालू था, मतलब वेयरएवर यू आर गोइंग, कॉफी शॉप से लेकर पार्टी तक. और ये फैक्ट है, जितने भी हमने ऑडिशंस लिए, जो भी हमने देखा, उसमें हमें मेरी फिल्म के अकॉर्डिंग जो हमने विजुअल हमने देखा है वो चीज़ हमें नहीं मिला. बट ऑल आर 4 and 5 नो ऑडिशन डायरेक्ट सिलेक्शन. बिकॉज वो होता है ना कि एक बार देखा, एक बात हुई और मज़ा आ गया, यार यही तो चाहिए था मुझे. वेरी नाइस. तो इस तरीके से हमारी कास्टिंग क्लोज हुई. देन अब हम लोग फ्लोर पे जा रहे हैं,
काफ़ी सारी मुश्किलें भी आई हैं हमारे पास, बट नाउ वी आर परफेक्टली ओके। ग्रेट। एंड स्पेशली इस चीज़ को आगे बढ़ाने में हमारे वन कोलीग जो यहाँ पे मिसिंग है, मिस्टर राकेश भाई, अगर आप हो तो प्लीज़ कम ऑन स्टेज। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है, जो यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया है। एंड उसके बाद हमारे जो पिलर हैं, जिनकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे खड़े हैं, वो हैं हमारे राठी साहब। इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें। इसके बाद जो हमारे थर्ड पिलर हैं, वो हैं हमारे मिस्टर एंथोनी एज अ को प्रोड्यूसर। इन्होंने भी अभी बहुत सपोर्ट किया है। अगर ये नहीं होते तो शायद हम इतने आगे तक नहीं सोच रहे होते। तो मैं भी चाहूँगा मिस्टर एंथोनी से कि वो भी कुछ 2 वर्ड बोलें इस फिल्म के लिए। बिल्कुल सर, प्लीज, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। I am not from the family background, but I enjoying working with this team, and it's beautiful that I met Arjun through one of my colleagues with whom I had made a movie before, and I think this is the best setup. He was proposing me a lot of projects, but this is the best setup I have ever come across, and I feel these people are all professional, and I thank all my co-producers for giving me the chance to become producer in this movie. Thank you. Thank you, sir. Everybody put your hands together for Mr. Puneet sir. Thank you, sir. We were waiting for you. बहुत ही बेसब्री से हमें आपका इंतज़ार था। हमने इतनी सारी बातें की फिल्म को लेकर, प्रोजेक्ट को लेकर, एंड अब हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कि क्योंकि हमें सिद्धांत ने ये कहानी बताई कि उन्होंने नरेशन सुन के वो जब आपके पास गए उन्होंने आपको आइडिया बताया, तो आपने भी एकदम झटपट हाँ कह दिया कि बस डोंट वेट अनदर मोमेंट। तो आपको ऐसा क्या लगा उस स्टोरी में, और सिद्धांत के इस डेब्यू को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। एक बार नमस्कार के लिए तालियां हो जाए फ्रॉम दिस बेस वॉइस, अमेजिंग। मुझे मैं ये कहना चाहूँगा, सब पहले तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं प्लस जो डायरेक्टर हैं राजेश जी, सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। और जब सिद्धांत ने मुझसे आके कहा कि पुनीत के डैड, मैं एक फिल्म के ऑडिशन के लिए गया था, मैं करके आया हूँ और मैंने नरेशन सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक एक पिता होने के नाते डेफिनेटली एक बहुत ही खुशी महसूस होती है कि सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि इसने अपने दम पर, अपने बल पर खुद गया, ऑडिशन दिया और जाके खुद ये मेहनत करके आया है। सो दैट वाज, ये मेरे लिए बहुत ही एक टचिंग मोमेंट था। और तो मैंने कहा कि बेटा गॉड ब्लेस यू, आप 5 साल से थिएटर कर रहे हो, यू आर डूइंग थिएटर विद मी, बाहर भी आप कर रहे हो, और आपको ये अगर अपने बलबूते पे आपने ऑडिशन देने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, दैट मीन्स यू हैव अराइव्ड। और ईश्वर आपको शुभकामनाएं दे, भगवान करे आप बहुत तरक्की करें। सो आई वाज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने जो मुझे आइडिया सुना है, मुझे लगा ये क्राइम थ्रिलर जॉनर है और ये करना चाहिए, और प्लस एबल हैंड्स के हाथ में है। राजेश जी को कौन नहीं जानता, तो बढ़िया इन्होंने काम, अवार्ड विनिंग फिल्म बनाई हैं। तो ही इज़ मतलब ना कहते हैं एकदम ही सीजनड डायरेक्टर हैं, काम कर चुके हैं, तो विश देम ऑल द बेस्ट। तो इसी के साथ इतने सारे बेस्ट विशेस अब इकट्ठा हो गए हैं, तो एकदम धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। राठी सर, मैं चाहूँगी कि आप अपने हाथ से ये क्लैप पुनीत सर को दें, और पुनीत सर आप क्लैप करके शुरुआत करें लॉन्च की और इस ऑफिशियल अनाउंसमेंट की फॉर लास्ट डील। राठी सर, थैंक यू सर। The cast, the producers, Shri Gabhan Productions LLP and ABA Films and Entertainment presents Last Deal, directed by Rajesh K. Rathi. Written by Rajiv Yogendranath and our outdoor media partner, Yogesh Lakhani ji is also here. मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी। योगेश जी, आप प्लीज मंच पर पधारें। डॉक्टर योगेश लखानी फ्रॉम ब्राइट आउटडोर्स। Best wishes to our amazing team, our producers, co-producers, our star cast,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गेस्ट का जो यहाँ आए हैं अपने बेस्ट विशेस के लिए. Everyone, this is the official launch of Last Deal, starring Mr. Puneet Isar's son, Siddhant Isar, in the leading role, the main protagonist, with our star cast, Amit Pachori, Supurna, and Preeti Chaudhary.
बात है कि मैं नर्वस तो बिल्कुल नहीं हूँ। यस, एक एक्साइटमेंट अवश्य है, वो होनी भी चाहिए। एक पिता के लिए इससे बड़े फ़ख्र की बात क्या हो सकती है, गर्व की बात क्या हो सकती है कि उसका जो सुपुत्र है, उसका बेटा जो है, वो आज उसका लॉन्च डे है। फिल्म वे इंडस्ट्री में, फिल्म जगत में वो अपना पहला कदम रख रहा है। तो बहुत ही मैं क्या तो भावात्मक हो चुका हूँ। मेरा एक इमोशनल फीलिंग है, तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसने अपने बलबूते पे खुद जाके स्ट्रगल करके ऑडिशन दे के, लोग पता नहीं कितने बच्चों ने ऑडिशन दिया, उसमें से उसने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, मेकर्स को इम्प्रेस किया और उसे ये फिल्म मिली है। जी, हाँ जी, जी, हाँ जी, डेफिनेटली। बिकॉज देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने अपने बेटे को ये बताई है कि हमारी इंडस्ट्री में इंसान अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। इंसान का जो नेचर है, जो इंसान सब सर्वप्रथम आपको अच्छा इंसान बनना है। तो वो तो घर के जो हमारे घर की मेरी जो पत्नी, धर्म पत्नी है, जो सिद्धांत की मम्मी है, ये तो घर में जो हम संस्कार देते हैं बच्चों को, उसमें है। लेकिन मेरे इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले से कहा, बेटा आप इस लाइन में आना चाहते हो, हमारी लाइन में एक ना कमज़ोर आदमी वैसे चल जाएगा, लेकिन एक अच्छा कलाकार होने से ज़्यादा जो ज़्यादा आवश्यक चीज़ है वो है कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, बी पोलाइट, यू हैव टू विनम्र रहना बहुत ही ज़रूरी है। सर झुका हुआ होना चाहिए। वो कहते हैं ना, जब पेड़ को फल ज़्यादा लगते हैं तो झुक जाता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है हमारी लाइन में, क्योंकि आप कल पता नहीं कब आपका बुरा वक्त आए, कब आपका अच्छा वक्त आए। और आज मैं इंडस्ट्री में तकरीबन नाना करते 40 सालों से हूँ। तो ये ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य दिया, मैं इस इंडस्ट्री में, और इस इंडस्ट्री ने मुझे अपनाया और मुझे इतना काम दिया। तो ये जो काम है, आदमी कहते ना, आदमी का अगर कैरेक्टर चेंज हो जाए या आदमी का नेचर चेंज हो जाए तो फिर इंडस्ट्री उसको बर्दाश्त नहीं करती, उसको खड़ा नहीं करती। तो जो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से ज़िंदा रहने का जो गुरु मंत्र यही था कि यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। और जो दूसरा मैंने उससे जो बात की, मेरा बेटा, हार्ड वर्क नेवर गोज अ फेल, हार्ड वर्क नेवर गोज अ वेस्ट। तो बेटा, जो भी काम मिले उसको बिल्कुल तन मन धन लगा के 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% करो। फल की इच्छा मत करो, छोड़ दो ईश्वर में। वो कल क्या होगा, कल किसी को नहीं पता। आप आज में जियो, अपना जो है काम वो पूरी मेहनत से करो। कल तुमको ये ना लगे कि एक मलाल ना हो कि भाई मैंने ये काम किया, यार काश मैं कर लेता, यार मैंने उतनी मेहनत नहीं की। तो बेटे, पूरी मेहनत करो। ही इज़ अ ट्रेंड एक्टर। उसने स्पीच डिक्शन तकरीबन 3 साल मेरे साथ उसने उस पर काम किया। फिर ये नादिरा ज़हीर बब्बर जी के साथ था, उनका थिएटर एकजुट में था, वो थिएटर करता रहा, बैक स्टेज किया, फ्रंट स्टेज किया, थिएटर किया। फिर मैं प्ले भी बनाता हूँ। मैंने एक हिंदी नाटक बनाया है जिसका आजकल मंचन चल रहा है, महाभारत एन एपिक टेल, जिसको लिखा मैंने और सिद्धांत ने मिलकर लिखा है। उसकी राइटिंग भी स्क्रीन पे पूरा सिद्धांत ने और मैंने किया है, विच आई हैव रिटन, आई हैव डायरेक्टेड। एंड जो उसमें जो जूनियर दुर्योधन का जो पात्र था, एक जो बालावस्था का जो गुरुकुल का जो दुर्योधन था, तो आई वांटेड समबडी टू प्ले दैट। तो मैंने उससे कहा कि सिद्धांत आप करना चाहेंगे? वो तो यस डैड, मैं ज़रूर करूँगा। तो ही एक्सेप्टेड दैट चैलेंज, ही प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड ही इज़ डूइंग इट। और उसका हम मंचन, उसका लॉन्च हम मुंबई में करने जा रहे हैं। दैट्स अ सिल्वर जुबली शो। हमारे 25 शोज़ 5-6 महीने के अंदर हो चुके हैं। सो 14 सितंबर नेहरू में कर रहे हैं और 15 सितंबर हम 2 शोज़ सेंट एंड्रूज में कर रहे हैं। तो उसमें आप सिद्धांत को देखेंगे। तो इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू द डायरेक्टर राजेश राठी जी। वो हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं, 5 प्रोड्यूसर्स मिलकर ये फिल्म बना रहे हैं। इट्स अ गुड थिंग। ये वे एक्सपर्ट लोग हैं, बहुत प्रोडक्शन में काम कर चुके हैं, सो दे नो देयर जॉब। ही इज़ इन केपेबल हैंड्स। ही हैज़ गॉन, heard the script once. I said, don't go according to my gut. आप एज एन एक्टर, आपने जाके स्क्रिप्ट सुनी, आपको अगर दिल को अच्छी लगती है, करो। That's what he's doing it. And that's how this film is happening. पुरी जी, I would like to ask you one question. हाँ जी। आप ऑलमोस्ट 40 साल से, जैसा आपने बताया, तकरीबन इस साल से इंडस्ट्री में है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, बट बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। जो करंट टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद आज पाकिस्तान ने जो है सीरीज बैन कर दी है इंडिया की, और आर्टिस्ट ऑलरेडी बैन थे, एडवर्टीजमेंट्स जो सर्फ एक्सेल वगैरह चलते थे वो भी बैन कर दिए। एक एक्टर होने के नाते जो अब बॉयकॉट है पाकिस्तान का एक स्लोगन लेके घूमते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए सबसे पहली बात तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, हम एक्टर बाद में हैं, पहले हम हिंदुस्तानी हैं। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? तो क्या हमारे इस देश के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता? अब वो हमको बार बार 1947 में उन्होंने कबायली का एग्रेशन किया, उन्होंने हिंदुस्तान ने कभी आक्रमण पहले नहीं किया, 47 में उन्होंने किया, कश्मीर एग्रेशन किया, फिर 62 के बाद में 65 वॉर हुई, तब उन्होंने किया, फिर 71 वॉर में किया, फिर कारगिल में किया, बार बार वो हमारे पे। नॉट ओनली दैट, दे बीन डूइंग हैविंग अ Pakistan has been doing a proxy war with India for the past 30-40 years because they know they cannot defeat us in actual warfare. We are too strong for them. But वो करे जा रहे हैं कि पंजाब को तोड़ो, पंजाब की युवा पीढ़ी को तोड़ो, ड्रग्स के थ्रू, फिर इंसर्जेंसी के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू, वो तो करे जा रहे हैं। आपको कश्मीर में, जेके में आप जो हमारे वारदात देखते हैं, जो कसब ने आके बम्बई में क्या किया, दे टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, वो तो करे जा रहे हैं। हम क्या करें? हमसे केवल कैंडल मार्च कर रहे हैं। क्यों? तो हम पहले हमें हिंदुस्तानी होना है भाई। जो वाजपेयी जी तो बस यात्रा लेकर गए थे, उसके बाद उन्होंने कारगिल किया, तब क्यों नहीं? मतलब कि हम सिर्फ हम ही ने, ये हमारा ही दायित्व है कि हम कैंडल मार्च करेंगे, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। उन्होंने तो नहीं बढ़ाया। तो राबाई बालाकोट में क्या हुआ, पुलवामा में क्या हुआ? तो जब वो करते तो भाई मैं समझता हूँ कि उनको उन्हीं की भाषा में समझाना चाहिए, और बहुत सही हुआ है। अब कश्मीर का इश्यू आप ले लीजिए, व्हाट अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसकी बात क्यों नहीं करते? जो जगह उन्होंने हड़पी हुई है वहाँ के भी कश्मीरी उनको नहीं चाहते। ये हिंदुस्तान का हिस्सा है, इट वाज अ टेम्पररी अरेंजमेंट, वी हैव जस्ट गॉट इट बैक। इसमें तो सब नागरिकों को खुश होना चाहिए, सब हिंदुस्तानी को खुश होना चाहिए। जो किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत सही किया है। बिल्कुल, क्यों नहीं भाई? पहले तो बॉयकॉट आप देखिए उन्होंने शुरू किया है, जब उन्होंने किया गलत जो किया, हम क्यों करें भाई? जो हमारे देश में आतंक फैला रहा है, जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को भड़का रहा है, जो हमारे यहाँ पे अराजकता फैला रहा है, हम क्यों बात करें उनसे यार? आप एक घर में रहते हैं, आपके नेबर्स हैं, अगर नेबर बार बार आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, बार बार आपको तंग कर रहा है, आपके उनसे दोस्ती करते जाएंगे? नहीं करेंगे। तो ये इट इज अ मस्ट, इट्स अ हाई टाइम, वी मस्ट पुट कॉल अ स्पेड, वी मस्ट डू दैट। एक्साइटेड हूँ और अपने आप को मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है एंड आई वुड लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर। जी ऑडिशन लेने गए तो उसके पहले कुछ बातें की थी सर से? जी एक्चुअली नहीं की थी, उनको काफ़ी सरप्राइज़ लगा क्योंकि मेरी फ़ोटो देखी, सर ने बुला लिया, मैं गया ऑडिशन दिया, सर को पसंद आया, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग मुझे पसंद आई, मैंने डैड से कहा तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि तूने अपने आप ऑडिशन दिया एंड जनरली होता है कि किसी से रिकमेंडेशन लो, कुछ नहीं था।
अपने आप ही चीज़ आई तो ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे। उसके बाद क्या रिएक्शन था उनका जब उन्हें मालूम पड़ा कि आप सेलेक्ट हो गए? मैंने उनको थोड़ा कुछ सीन सुनाए मैंने, तो वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं ये करो, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। उन्होंने मेरी मॉम से कहा, फिर हम सब साथ में, यू वेरी लाइक इट वॉज अ गुड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एज अ फैमिली, सब खुश थे। एंड यस, हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप पूछोगे ना। क्या किस तरह से फिल्म मिली आपको, क्या था? मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था, उनके एडिटर मुझे राठी सर से मिलाया था। तो राठी सर मुझे जिस दिन मैं आई, हाँ जी हाँ, तो मैं जिस दिन राठी सर से मिलने आई थी, राठी सर ने मुझे कहानी सुनाया। तो कहानी सुनाते वक्त उन्होंने पढ़ लिया था कि आई कैन प्ले दिस रोल, सो दैट वे आई गॉट द मूवी। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी पहली फिल्म है और मैं यहाँ पाँच से 6 साल हो गए हैं तब से काम कर रही हूँ। कुछ काम किया है, लाइक कुछ वीडियोस किए हैं, पंजाब में काफ़ी काम करती हूँ। और बिकॉज ऑफ सर आई एम हियर, राजेश राठी। वो जो सर ने बताया था, अर्जुन सर ने जो स्टोरी बताई थी कि एक क्लब में मिले, ये मिले, एक इवेंट था, मुश्किल मूवी रिलीज़ हुई थी अभी, तो वहाँ पे मैं गई और सर वहाँ पे थे अपनी वाइफ के साथ, मैम वॉज देयर। सो उन्होंने देखा एक लड़की आई है, कोई अच्छी दिख रही है, तो मेरे पास आए कि आई यू मॉडल? मैंने कहा यस सर। एक्टिंग कर लो? मैंने कहा यस। तो बोलते हैं कि कल आइए ऑफिस में। तो गई, ऑडिशन लिया, उनको अच्छा लगा। इतनी अच्छी तो एक्ट्रेस हूँ नहीं, बट उनको अच्छा लगा, मे बी मेरी किस्मत अच्छी थी। सो लाइक बोला ना फिल्मों में होता है उस टाइप से, आई वॉज रियली शॉक्ड कि या सच्ची आई एम डूइंग फिल्म। हाँ, सो रियली आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो ग्लैड रियली, एंड थैंक्स सबके लिए। और अब सबका प्यार मिलेगा और अच्छा सब होता रहेगा। क्योंकि सिद्धार्थ आपसे जानना चाहूँगा कि जी। आपके पिताजी को बहुत ही उम्मीद है आपसे, अब बहुत जी। ही कॉन्फिडेंट है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और कितना मुश्किल था आपको ये मूवी मिलना? जी देखिए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट में पूरा कॉन्फिडेंस है, ऑनेस्टली। आई मीन जो ऐसे जो सीन्स जो लिखे गए हैं, एक्टर इज़ ओनली एज गुड एज ए स्क्रिप्ट। जो सीन्स लिखे गए हैं, मुझे पता है ये करने में मुझे मज़ा आएगा और देखने में ऑडियंस को मज़ा आएगा। एंड ऑफ कोर्स बस तो यही। जी, ऑन बोर्ड सब लोग आए और एक कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो एक जो फिल्म बनती है उसके पीछे बहुत कुछ कॉस्मेटिक एनर्जीज वर्क करती है, तो हर एक की किस्मत में होता है कि उसे वही काम करना है। तो मेरे जितने भी एक्टर्स हैं, मैंने बहुत ऑडिशन लिए, 2 महीने तक लिए। जितने ऑडिशन लिए उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। ये किस्मत की बात थी, बाई चांस इससे मैं मिला एक पार्टी में, ये सिलेक्ट हो गई। सिद्धांत से अचानक मिला, वो सिलेक्ट हो गया। और उसी तरह से सुपूर्णा भी ऐसे ही मिली। तो अमित भी मिले, एक्सीडेंटली मिले। तो ये जितने भी मेरे स्टार्स हैं इस फिल्म के, वो मुझे एक्सीडेंटली मिले, प्रयास करने पर नहीं मिले। मतलब इनकी किस्मत में ये फिल्म थी, मेरी किस्मत में ये लोग। और सर को मैंने नंबर दिया था, बिकॉज मैम साथ थी, तो मुझे लगा कि हाँ जेन्युइन है तो नंबर दे देना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे नंबर लेते हैं, आप बिलीव नहीं कर पाते, लड़कियां नंबर नहीं देती इजीली। मैम थी, उनके वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। ओके, तो सर क्या कहना चाहिए आपके रोल के बारे में, थोड़ा बहुत पहले तो जानना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ इस रोल से, क्योंकि मैं पहली बार एक आउट एंड आउट नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। मैंने आज तक नहीं किया है, बहुत सारे पॉजिटिव रोल्स किए हुए हैं और मैं जानता हूँ कि मैं नेगेटिव बहुत अच्छा कर सकता हूँ मैं। और जिस तरह से राजेश सर ने मुझे पूरा इस रोल के बारे में बताया है, मैं सच बोल रहा हूँ, ये तो सभी बोलते हैं एक्साइटेड, लेकिन एक्चुअली मैं मतलब मेरे अंदर मतलब गूज़बम्स टाइप के हैं कि मतलब मैं कब कैमरे के सामने जाऊँ और कब मैं परफॉर्म करूँ, मतलब समझ रहे हो, पूरा अंदर मैंने घुसेड़ लिया उस कैरेक्टर को। तो इस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है मुझे, तो बस मैं इंतज़ार करूँगा कि कब ये एक्शन बोलें और कब मैं स्टार्ट हूँ। मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ बस। एक्शन बोलेंगे तो मैं कट नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आई एम श्योर कि मन करेगा देखता ही रहूँ। ज़्यादा टाइम नहीं है, हम भी ऐसे करें सर? और मैं भी खाली देखता ही रहूँ। और ये मेरी प्रिविलेज है कि मैं राजेश सर जैसे डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया है। हम लोग इनके आगे कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, ये दिल से बोल रहा हूँ। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है, तो वो जो चीज़ है ना, वो एक्चुअली हमारे ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी। जो इनकी हम्बलनेस है वो आपको कैमरे में दिखाई देगी जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, आप देखिएगा। थैंक यू। फर्स्ट तो आई प्राउड
दैट कि मैं राठी साहब के साथ काम कर रहा हूँ। इस फिल्म में मैं एक डॉक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और एक कॉमेडियन डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा कैरेक्टर है। बस अभी फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है मुझे। और ये फिल्म में जो ग्रुप के लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और राठी साहब तो बिल्कुल मतलब मुझे प्राउड है कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और फिल्म की सारी टीम इतनी अच्छी है कि हम आई होप दैट कि फिल्म हिट या सुपर हिट हो। बहुत ही ज़्यादा हम हैप्पी हैं अभी कि जो हम पिछले 7-8 महीने से मेहनत कर रहे थे अब जा कर के वो रंग लाई है और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोग की दुआ रही, पब्लिक की दुआ रही तो ज़ही और भी आगे पहुँचेंगे। अभी तो हम एक फ़िल्म कर रहे हैं, बाकी प्लानिंग अभी और भी है हमारी कि 2 से 3 फिल्म हम इसी ईयर में और अनाउंस करें। इस फिल्म पे 7 महीने से मेहनत किया, उससे पहले से भी मेहनत कर रहे थे एज ए प्रोड्यूसर आगे बढ़ने के लिए। सारे पार्टनर्स ने मिलकर के आगे बढ़ने का एक प्लानिंग की है। आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सपोर्ट और आशीर्वाद दो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा लड़का यहाँ तक पहुँच गया और ये कर रहा है। बहुत मेहनत किया उसने और एक अपना बैनर लेकर के चल रहा है, तो मुझे तो और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और I am very happy that my brother has achieved this much of target in this age, so I am very glad to say that this is my brother. नहीं ठीक है, ये फिल्म अच्छी से बने और अच्छा चले, इसके लिए मैं अपने भतीजे को बहुत बधाई देता हूँ कि जो आगे भी ऐसे काम करते रहे। देखिए, सबसे पहले बात तो कहूँ कि फ़िल्म का टाइटल है लास्ट डील, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी इतनी सारी डील हो और ये फ़िल्म बहुत बड़ी हिट हो, क्योंकि सब नए लोग हैं इसमें और हमारे डायरेक्टर साहब इन्होंने बहुत मेहनत की इसमें। पुनीत जी के लड़के सिद्धांत, पुनीत जी ने बहुत मेहनत की है, तो ऑल द बेस्ट। ओके, ये मूवी में एक स्पेशल सॉन्ग भी है सिद्धांत के लिए। क्या आपको पता चल गया? अनाउंस किया है उन्होंने। अच्छा, स्पेशल सॉन्ग और शायद आप ही कोरियोग्राफ। देखिए, हाँ, मेरे से जो योगदान होगा इस फिल्म के लिए मैं करूँगा, क्योंकि इसमें एक तो पुनीत जी है, फिर मेरे साथ ईपी थे, रवि सिंह, वो इसमें प्रोड्यूसर भी एक वन ऑफ द प्रोड्यूसर है, तो मैं जो मेरे से हो सके मैं पूरा योगदान करूँगा इस फिल्म के लिए। एक्चुअली ही हैज़ बीन वी आर फीलिंग सो ग्रेटफुल टू हिम कि मतलब मास्टर जी ने एकदम बोला कि नहीं, आपकी फिल्म के लिए गाना एक करेंगे। एंड आई रियली थैंक यू सो मच। एंड इट इज़ ओके मास्टर, उन्होंने सिद्धांत ने कभी परफॉर्म नहीं किया, ये फर्स्ट सॉन्ग होगा उनका करियर में। मैं सिद्धांत को आज मिला हूँ फर्स्ट टाइम, लेकिन देखने से ऐसा लगता है, बहुत सुना है कि इज़ वेरी गुड एक्टर, थिएटर किया हुआ, अच्छा डांसर है, तो जब मौका मिलेगा उनके कंधे पे ज़्यादा जिम्मेदारी है, वो जानते हैं। और पुनीत जी इतने सालों के तजुर्बेदार है, वो कुछ ना कुछ तो बेटे के लिए करेंगे। और हमारे लिए नया आर्टिस्ट बहुत ज़रूरी है। नए आर्टिस्ट आएंगे, उभरते कलाकार रहेंगे, नए स्टार बनेंगे, तो हमारी इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी। ओके, मैं एक हिंदुस्तान कलाकार हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ में हूँ और जो हिंदुस्तान बोलेगा वो मैं करूँगा। थैंक यू। मैंने कहा ना, मैं हिंदुस्तानी कलाकार हूँ, जो हिंदुस्तान बोलेगा वो मैं सब करूँगा। जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ है, मैं उनके खिलाफ हूँ। थैंक यू। तो यही कहना चाहूँगा कि छोटे पैमाने में लॉन्च हुई, फिर भी बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, पूरा इंडस्ट्री के लोग हैं, बहुत तजुर्बेदार हैं और पिक्चर बहुत अच्छी बनेगी। और सिद्धार्थ का लॉन्च